I want to begin today by acknowledging that I'm moderating from Turtle Island, otherwise known as Canada, and honor the land which is and has always been home to many Indigenous and First Nation communities, including Inuit and Métis. I know that there are a lot of you that are really interested in this topic, and we will be making time for questions in between each of the segments. So let's get started, because I'd like everyone who has questions to be able to get their questions answered and for everyone to hear all the panelists. So a year ago today, we were just beginning our second year of negotiations on Convention 190, a convention that deals with violence and harassment in the world of work. While it was a successful exercise in developing an instrument, it took a lot of work, a lot of consultation, and a hell of a lot of social dialogue. Today, we're feeling the effects of COVID, and we know that it's not gender neutral. Women are at the forefront of the pandemic in so many ways, and the issue of gender-based violence is there with all of us. Globally, women make up about 70% of care workers who are currently on the front line. They also make up the majority of those workers now deemed essential. Those working in the food retail outlets, grocery stores, pharmacies, the postal workers, those who are cleaning our public spaces, our hospitals, waste collectors, amongst others. And even before the crisis, the dominant picture for women's paid work was that of low wages, little or no labor protection, poor working conditions, including lax or no occupational health and safety, and a lack of job security and social protections. Let's also not forget that the majority of the women workers globally are in the informal sector. Since the beginning of the various lockdowns, we've heard, seen, and felt the impact on women around the world. The frontline workers who have endured violence and harassment from customers, clients, and the general public. The poor working conditions, the increase in the amount of unpaid work that we already do, the live-in caregiver or domestic worker who's working in the home of her abuser, the women with children who are also home due to school closures, having to deal with demands from the children, having to deal with demands from their partner, from family and work. We know that the incidence of gender-based and domestic violence has also increased with COVID. There have been reports of increasing incidents of violence and harassments against staff of frontline that are in frontline services, including health and social care workers, food, retail, transport workers. We've heard from informal workers who have also faced increased violence from authorities, having their goods destroyed or confiscated. For many women, staying home does not mean staying safe. Those who have lost their jobs, those who are on layoff, and women who are working from home are all at increased risk for domestic violence. Lockdown measures resulted in women being confined with violent partners. It also has meant isolation, uncertainty, financial stress, and fear about the future. All of those things which are exacerbating tensions within households and therefore increasing the likelihood of violence. During the C190 negotiations, we spoke about all of this and what would be needed to ensure a world free from violence and harassment. The instrument provides ways to deal with all of this. So today, we're going to hear from women who will speak on various aspects of gender-based violence. They'll break it down into three overall areas: how unions have been dealing with different types of violence and harassment, and how C190 can help address even more effectively these types of violence. The rise of gender-based violence, particularly domestic violence as a result of COVID-19, and the role that trade unions are playing. The emphasis of the need for a gender-inclusive COVID-19 response and post-COVID recovery as part of a gender-equal normal. So to begin,
We'll hear from two speakers and then we'll go to a question and answer. So our first speaker is Irene Khumalo. सबसे पहले आयरीन खमालो है International Women's Committee Chair. She's also the first Deputy President of the Democratic वो सबसे Swaziland. And in a recent PSI, डेमोक्रेटिक नर्सेस यूनियन स्वाजीलैंड की वो अध्यक्ष हैं और कोविड क्राइसिस के दौरान उसने इन सब परिस्थितियों का सामना किया है और वो ये बताएंगे कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उन्होंने इस महामारी के साथ निपटने के लिए क्या-क्या उनको काम करना पड़ा। वो ये बताएंगी कि यहाँ पे जो हमारी जो कानून है उनका इसमें उनकी क्या भूमिका होगी। उसके बाद जूलिया फॉक्स से हम सुनेंगे। जूलिया फॉक्स 20 सालों से कामगारों का नेतृत्व कर रही हैं और वो हमेशा महिलाओं के लिए काम करती हैं। वो नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहाँ पे वो SDA का नेतृत्व करती हैं और यहाँ पे भी वो उपाध्यक्ष हैं एक दूसरी संस्था का। वो इसके बारे में बात करेंगे कि ग्राहक की तरफ जो हिंसा आती है जिसका सामना महिलाओं को करना पड़ता है, वो उसके बारे में बताएंगी और वो इसके बारे में बात करेंगी कि जो थर्ड पार्टी वायलेंस होती है, थर्ड पार्टी अन्य लोगों की तरफ से, अन्य व्यक्तियों की वजह से जो हिंसा होती है, वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आयरीन से निवेदन करूंगी कि वो आपसे बात करें और उसके बाद हम जूलिया से सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। उसके बाद आपको सवाल जवाब करने का मौका दिया जाएगा। नमस्कार, हाय, मैं आयरीन कुमालो हूँ। मैं ग्लोबल चेयरपर्सन है, ग्लोबल अध्यक्ष हूँ और मैं जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके संघ और PSI की भी मैं अध्यक्ष हूँ। मैं नर्स हूँ, ये मेरा पेशा है और मैं अभी भी नर्स का काम करती हूँ और ये मैं इस महामारी के दौरान अपना काम कर रही हूँ। मेरे लिए ये एक ऐसी स्थिति है कि मैं महामारी के दौरान काम कर रही हूँ और साथ-साथ मुझे भी अपनी सुरक्षा करनी होती है। इस दौरान हमें अपना काम तो करना ही है, लेकिन मुझे ये भी सुनिश्चित करना है कि मेरे जो अधिकार हैं, जो मेरे अधिकार अपनी सुरक्षा करने के लिए हैं, उनका उल्लंघन ना किया जाए। हम फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं और ज़्यादातर ऐसे जो कर्मी हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं हैं और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस मुद्दे पे आपके सामने यहाँ बात कर सकती हूँ और इस महामारी के दौरान। इस हिंसा के अलग-अलग रूप होते हैं। कई बार इससे मानसिक तनाव बढ़ता है। इससे कई बार आपका जो कार्य करने का माहौल है वो खराब हो जाता है और अगर आपका ये माहौल खराब हो जाता है तो इसका मतलब है कि मेरे लिए ये बहुत ही तनाव वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हमें अपने ही स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करनी होती है। PSI ने एक शिकायत लगाई है कि अगर हम अपने कर्मियों को बचा सकें तो हम उन जानें भी बचा सकते हैं। 120 देशों में हमें ये रिपोर्ट आई हैं कि कुछ 200 बयान आए हैं लोगों के कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको जो उनकी जो सहकर्मी हैं, जो उनके रिश्तेदार, जो पेशेंट के रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से प्रशासन की तरफ से उनको उनके ऊपर हिंसा हुई है, उनके हिंसा की धमकियाँ हुई हैं और उनके लिए उनकी सुरक्षा करने के लिए भी ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। उनको ज़बरदस्ती
ये जो सुरक्षा कवच होते हैं, जो प्रोटेक्टिव पीपीई होते हैं, उनके बगैर भी उनको काम करने के लिए ज़बरदस्ती बताया जाता है। उनको जो कूड़े के जो बैग होते हैं, उनको उठाने पड़ते हैं, उनको पेशेंट का ध्यान रखना होता है और ये सब हमारे अधिकारों का इसमें उल्लंघन होता है और हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारा जो कार्यस्थल है, वो हमारे लिए सुरक्षित रहना चाहिए। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उसमें हम देखते हैं कि कई लोगों को ये पीपीई मिलते हैं, ये जो सुरक्षा उपकरण हैं, जो उनको मिलते हैं, कइयों को नहीं मिलते हैं। और जो प्रशासन है, वो भी सोचते हैं कि अगर आप स्वास्थ्य कर्मी हैं और अगर आप तैयार हैं इन पीपीए के बगैर काम करने का, तो वो और अगर आप इसके खिलाफ बोलते हैं, तो वो आपके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। और हम सबको अधिकार है कि हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ हमारा कार्यस्थल है, वहाँ पे हमें सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहाँ पे हमारे ऊपर हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इस तनाव से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो उनके मानसिक स्थिति को उससे काफ़ी बिगड़ जाती है और महिलाओं को इससे काफ़ी जोखिम है। उन्हें जहाँ तक यौन उत्पीड़न होता है कार्यस्थल में, वो भी हो रहा है। जैसे यौन शोषण भी हो रहा है उनका, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि आपको अगर ये पीपीई, ये अगर आपको सुरक्षा उपकरण चाहिए, तो आपको हमारे साथ यौन संबंध बनाने होंगे। तो हमने ये पता लगाया है कि चीन में जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको बड़े लंबे घंटे काम करना पड़ा। अ, उनको डायपर पहनने पड़े क्योंकि वो बाथरूम नहीं जा सकते थे। उनको गर्भरोधक लेने पड़े, उससे जो उनका महीना है वो नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उनका काम करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। तो इसलिए उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव हो गया और हमने ये देखा है कि इसमें जो महिलाएँ हैं, जो महिला कर्मी हैं, उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। घर पे जो जो जब ये महिला कर्मचारी घर जाते हैं, तो बाहर से ही उनको पानी के पाइप से उनके ऊपर पानी लगाया जाता था और उनको बिल्कुल अलग लगा किसी कमरे में डाला जाता था और इसलिए उनको घर पे भी ऐसा नहीं महसूस होता था कि वो किसी सुरक्षित जगह में है। इसलिए उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त मानसिक तनाव हो रहा था और मेरे अपने देश में मैंने ये देखा हुआ है कि जो हिंसा हो रही है, वो मानसिक तरीके से हो रही है। और उसके अलावा सबके लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस लॉकडाउन के दौरान सबको घर में बंद रहना पड़ता है और जो सरकार कहते हैं इससे वो जो इसकी फैलाव को रोकना चाहते हैं, लेकिन परिणाम इसका ये है कि लोग ज़्यादातर घर पे हैं, घर के अंदर बंद हैं और जो महिलाएँ घर के अंदर बंद हैं, वो उनके जो पति होते हैं अ, उनकी तरफ से फिर हिंसा होने के चांसेस होते हैं। कई केसेस में ऐसा हुआ था कि जैसे जो उनके जो पति हैं उनको काम से निकाला गया था, उनकी छँटनी हुई थी, तो जो महिलाएँ हैं उनको उनकी देखभाल करनी पड़ी, पैसे कमाने पड़े। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो महिलाएँ हैं, उनको सारे ही ये ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेनी पड़ी हैं। यानी कि जो हम बता रहे हैं उनके लिए ये तनाव भी काफ़ी बढ़ गया था और हम अपने देश में हमारे पास कुछ वेलनेस प्रोग्राम है, उनके लिए कुछ स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रोग्राम है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो इस महामारी के दौरान भी उनका काम चलता जा रहा है। जो समाज है उसमें जो स्वास्थ्यकर्मी हैं
उनके प्रति लोगों की भावना कुछ अ, अच्छी नहीं है, वो बदनाम होते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं कि देखिए ये ऐसे अस्पताल में काम करते हैं तो इन्हें भी बीमारी लग गई होगी या लग सकती है। तो जो पब्लिक है वो इन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति वो उनके ऊपर कई बार हमले भी करते हैं। हमने ये देखा है कि जो उनके रिश्तेदार भी होते हैं इन स्वास्थ्य कर्मियों के, वो भी उनके ऊपर हमला करते हैं, उनको मारते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि लोगों को ये शक है कि इन्हीं को ना बीमारी हो गई और इनकी वजह से हमें हो जाए। और इन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो सुरक्षा उपकरण हैं, जो पीपीई हैं, वो सिर्फ डॉक्टरों के लिए होते हैं और हम महिलाओं के लिए सिर्फ जो अस्पताल में जो कपड़े मिलते हैं वही दिए जाते हैं, जो डॉक्टरों के लिए हैं, उनको लिए अच्छे से ये उपकरण दिए जाते हैं। और कई बार उनको सिर्फ मास्क पहनाया जाता है, तो इसलिए उनको काफ़ी जोखिम होता है जब ये जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार होते हैं, जब उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, तो इन्हें बीमारी लगने का तो जोखिम है। तो अब ये सवाल है कि जब समाज में जो अगर कोई बीमार होता है, तो उनको वहाँ पे अ, बताना पड़ता है कि यहाँ पे हम बीमार हुए हैं, हम स्वास्थ्य केंद्र में जाना होता है। तो कई बार उनके पास ये कुछ यौन बीमारियां भी होती हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पूरा। और इससे हमें काफ़ी समस्या आई है, हमारे लिए काफ़ी समस्या आई है, क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो इस हिंसा का या किसी भी चीज़ का शिकार बनती हैं, उनको बहुत समय अपने पति या जो भी उनको पीड़ित कर रहा है, उनके साथ समय बिताना पड़ता है। वो किसी को बुला भी नहीं सकते। वो कई बार ऐसे टोल फ्री नंबर होते हैं, मोबाइल नंबर को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है। क्योंकि अगर आप सारा टाइम इकट्ठा होंगे, तो आप अकेले में कब फ़ोन कर सकते हैं? आपको समय कब मिलेगा जब वो नहीं सुन रहे होंगे? तो ये बहुत-बहुत मुश्किल परिस्थिति है। और ये जो टोल फ्री मोबाइल नंबर हैं, जिसमें आप निःशुल्क कॉल कर सकते हैं, ऐसे नंबर हैं। और ये लिंग आधारित हिंसा हो रही है, महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है। और जहाँ पे महिलाएं ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रति ऐसी हिंसा हो रही है। तो लेकिन जो मानसिक तरफ से जो उनको तनाव हो रहा है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जो महिलाएं हैं वो जानती हैं कि जो उनके ऊपर हिंसा कर रहे हैं, वो कानून उनके प्रति ऐसी कोई कार्रवाई नहीं ठीक प्रकार से करेगा, और इसलिए वो कई सारे मामलों में बताते भी नहीं हैं। ऐसे कुछ 68% ज़ोन होते हैं जहाँ पे कोविड, जहाँ पे ये महामारी है। तो महिलाएं ऐसे हैं कि उन मामलों की देखभाल की जाती है, और जो पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, वो अकेले नहीं रहते हैं, मतलब उनकी देखभाल हो जाती है। और वो कोशिश करते हैं कि जो ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पे महिलाएं जा सकती हैं, वहाँ से कोशिश की जाती है कि उनके प्रति जो हिंसा हो रही है, उनको उसको रोका जाए और उन महिलाओं को सहायता मिले। मुझे लगता है कि इस महामारी की वजह से ये जो हिंसा जो प्रचलित थी, वो और भी बढ़ गई है। और इसमें जो अनौपचारिक
अनौपचारिक क्षेत्र है, उसमें भी बहुत कठिनाई आई है। Demolishing the structures where the women they keep their wares, demolishing them, that oh, this is a lockdown and everyone is supposed to stay at home. And then the question is, who is then going to take care of the family if it's the woman is the breadwinner? Or if ये है कि परिवार का को कौन संभालेगा अगर औरत की कमाई ऐसे परिवार चल रहा है। अगर आदमी जो है उसकी नौकरी चली गई है, अगर उसका वेतन कटा गया है, तो कोई ना कोई कंपनी ढूंढना पड़ता है और जो औरत है उस पर ही तनाव का भार पड़ता है। और अगर वो मुश्किलों के सामने करते हैं तो वो कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करती पुलिस के साथ, क्योंकि उनको सारी परिवार का देखभाल करना पड़ता है सभी हालातों में। तो ये बड़ी चुनौती है, खासकर अनौपचारिक कर्मियों के लिए। उनको भी सुरक्षा की जरूरत है, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि 190 वाले संधि में कहा गया था, चाहे वो औपचारिक क्षेत्र में काम करती हो या अनौपचारिक क्षेत्र में। जहाँ तक इस संधि की बात है, उसका मतलब है कि जो सरकारें हैं उनको चाहिए कि वो जो संधि है उस पर हस्ताक्षर करें, लागू करें उसको, ताकि जो कर्मी हैं, खासकर जो महिला कर्मी हैं, वो सुरक्षा में काम कर सकें। और जो एम्प्लॉयर है और जो मजदूर संघ है और जो प्रतिबंध करने वाले लोग हैं, वो सब इकट्ठे मिलकर ये सुरक्षा प्रदान करें और सुरक्षित वातावरण बनाए कार्यस्थल में। तो हम लिंग आधारित हिंसा को ना कहते हैं और हम कहते हैं कि सार्वजनिक सेवाएं सब अनुकूल होनी चाहिए जहाँ तक लिंग की बात रही। और महिला होते हुए ये कोविड-19 में हम कह सकते हैं कि ये एक महामारी है, पर इस महामारी के दौरान भी औरतों को अपने हक मिलने चाहिए और अपने अधिकार मिलने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आइरीन। मरी, धन्यवाद। मैं आपके साथ हमारे संघ की लड़ाई साझा कर रही हूँ। ये उपभोक्ता जो है जो हिंसा करते हैं। हमने एक समीक्षा की थी कर्मियों की कार्यस्थल में, उनसे पता लगाने के लिए कि उपभोक्ताओं से की तरफ से कोई हिंसा होती है। और 5,000 से ज्यादा लोगों के बीच में ये समीक्षा किया था और कहा कि 25% लोगों ने कहा, कर्मियों ने कहा कि हर हफ्ते कुछ ऐसा मौका होता है। कईयों ने कहा कि रोज ही उपभोक्ता की तरफ से हिंसा होता है। 15% ने कहा है कि शारीरिक हिंसा का सामना किया और काफी 11% ने कहा कि उनके जो उपभोक्ता है वो ज़बानी हिंसा करते हैं और 10% ने कहा कि वो यौन आधारित हिंसा होती है। तो समीक्षा ने ये भी बताया कि ऐसी हिंसा जो है और ये उत्पीड़न जो है, ये शोषण है, इसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज करते लोग, क्योंकि हमें बताया जाता है कि जो उपभोक्ता है उसका ख्याल रखना है। तो हमारे जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनको इस हिंसा का सामना रोज ही करना पड़ता है। हमने इसलिए एक कैंपेन शुरू किया था, एक कैंपेन जिसका
प्लान अलग था, ये जो अभियान का जो प्लान था, और हमने ये सोचा था कि जो उपभोक्ता है उनके व्यवहार को बदलना जरूरी है। तो हमने टीवी पर ऐड निकाले थे, सोशल मीडिया पर ये अभियान बड़ा लंबा जरूरी था कि वो अपना व्यवहार बदले जितनी जल्दी हो सके। हम जानते थे कि ये सिर्फ एक दुकान में नहीं हो रहा था, ये पूरी इंडस्ट्री में, पूरे व्यवसाय में, सब जगह जहाँ भी खुदरा का काम होता है वहाँ पर कर्मियों को शोषण का सामना पड़ रहा था। इसलिए हमने सरकार के सदस्य और हेल्थ सेफ वर्कर्स ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो स्वास्थ्य कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया में, उन सबको इकट्ठे एक सम्मेलन में बुलाया, और हमने जो समीक्षा है उसके जो परिणाम थे उनके साथ साझा किए और सारे रिपोर्ट्स को साझा किए, और वो काफी शौक थे। वो काफी अलग अलग तरह की बातें उन्होंने सुनी, और उन्होंने देखा कि काफी आश्चर्य हुआ उनको ये सुनकर। जो पहला ऐसा सम्मेलन था, उसमें हमने व्यावसायिक ट्रेनिंग पर जोर दिया था। जो दूसरा सम्मेलन था जो 3 महीने बाद जिसको नियोजित किया गया था, हमने कुछ ऐसे पहलुओं पर नजर डाली जो अलग अलग नियोक्ताओं ने जारी किए थे, और हमने ये भी देखा कि व्यवसाय की तरफ से क्या उनको जरूरी है कहना, और ये है कि जीरो टॉलरेंस है, मतलब किसी भी तरह के शोषण या हिंसा की ओर, कि हम इसको सहेंगे बिल्कुल नहीं। और हमारा जो अभियान है उसका जो तीसरा हिस्सा ये था कि कार्यस्थल में व्यवहार को बदलना, और हमने जरूरत थी कि जो कर्मी हैं वो रिपोर्ट दर्ज करें, वो कहानियां बताएं, और हर बार बताएं कि जब भी ऐसा शोषण या हिंसा की घटना हो तो वो बताएं। तो इस पर हमने जोर दिया था ये तीसरे हिस्से में। फिर हम यूनिवर्सिटी और जो शोधकर्ता हैं उनके पास गए ताकि हम उनसे पता करें कि क्या सबसे अच्छे प्रथाएं हैं जो हम नियोक्ताओं के साथ साझा कर सकते हैं। तो हमने देखा फिर इनकी अध्ययन के बाद कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो सबसे सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, वो कैसे साझा करें व्यवसायों के साथ, और रिपोर्ट करने की प्रणालियां वगैरह ये सब भी उसमें शामिल थे। हमने फिर एक और समीक्षा की यौन शोषण के बारे में हमारी इंडस्ट्री में, और हमने कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे थे जो उपभोक्ताओं की तरफ से यौन शोषण के बारे में थे, और हमने देखा है कि 65% उपभोक्ताओं की तरफ से ये शोषण होता है, और 14% नियोक्ताओं से और बाकी लोगों से और कर्मियों से। 45% हमारे जो सदस्य थे उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका प्रभाव हुआ था, और 19% को डिप्रेशन भी हुआ था इसकी वजह से। और इस समीक्षा ने हमें ये भी बताया कि 40% ऐसी घटनाएं जो कार्यस्थल पर हुए थे वो कम से कम एक और मानव ने, एक और किसी ने देखा था या सुना था। लेकिन जब रिपोर्टिंग की बात आई तो सिर्फ 30% सदस्य रिपोर्ट करते थे। वो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो नियोक्ता है वो उसके बारे में कुछ करते नहीं है। काफी बार ऐसे होता है कि जो कर्मी ऐसी रिपोर्ट डालता है उसको किसी और सेक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी नौकरी ले जाते हैं, या उस पर दबाव डालते हैं कि वो नौकरी छोड़े। तो इसलिए जरूरी था कि हम यौन शोषण के बारे में भी स्थिति बदलें। अब हमारे पास समीक्षा के निष्कर्ष करें तो हमने देखा कि जब हम इंडस्ट्री के साथ बात करते हैं तो हम जब भी यौन शोषण की बात करते हैं उनके बारे में, ना सिर्फ कार्यस्थल में यौन शोषण,
पर उपभोक्ताओं की तरफ से जो यौन शोषण होता है उस पर भी हम बात करते हैं। और अब जरूरी है कि पूरे ही व्यवसाय में, पूरे ही इंडस्ट्री में, पूरे उद्योग में इसके ऊपर कुछ प्रणालियां स्थापित हों। जहाँ तक कि कोविड के दौरान का प्रश्न है, तो हमने देखा हाँ कि यौन शोषण उपभोक्ताओं की तरफ से बढ़ा है, और मुझे लगता है कि सारे देशों में ऐसा ही होगा। हमने देखा कि बहुत सारे लोग पैनिक में जल्दी जल्दी में सब कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। जो कर्मी हैं उन पर क्योंकि वो डरे हुए हैं, उन पर भी शोषण करते हैं, उनके खिलाफ हिंसा भी होता है, उत्पीड़न भी होती है। तो हमारा संघ इन मुद्दों पर भी गौर कर रहा है। जहाँ तक कि कर्मियों की सुरक्षा की बात रही कार्यस्थल पर, ये भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारा संघ है उसने एक 10 पॉइंट वाला सुरक्षा प्लान निकाला था, जो वो चाहते हैं कि जो सुपरमार्केट हैं वो लागू करें। काफी सारे खुदरा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, पर हम चाहते थे कि जो खुली है उनमें ये सुरक्षा कदम जारी किए जाए। तो हमने 10 पॉइंट वाला ऐसे प्लान किया था, ताकि एक जैसे कि शारीरिक दूरी, साइन वगैरह लगाने के लिए कि हम दिखाने के लिए कि हम कि जो दुकान था वो जो सुरक्षा के कदम थे वो निभा रहा है। स्क्रीन चाहिए थे कर्मियों के सामने, ढाल की तरह। हम हैंड सैनिटाइजर्स के बारे में भी हमने मांग रखी कि सारी दुकानों में ये उपलब्ध हो। पीपीई दिए जाए निःशुल्क तौर पर जो कर्मियों को, और उनकी सफाई की जाए, क्योंकि उपभोक्ताओं की तरफ से हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ता था। हमें ये भी चाहिए था कि जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो ऐसे उपभोक्ताओं को बाहर निकाले। और हमने एक अभियान भी चलाया था सार्वजनिक तौर पर, ताकि लोग समझे कि हम इस मुद्दे के बारे में क्या कर रहे हैं। तो सुपरमार्केटों ने हमारे ये प्लान को जारी किया था, तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। फिर हमने जो फास्ट फूड उद्योग है उसमें भी अपने कर्मियों के लिए ये प्लान शुरू किया था, और शॉपिंग सेंटर के लिए भी, क्योंकि शॉपिंग सेंटर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षा के कदम उठाए अपने कर्मियों के लिए। ये जो 10 कदम वाले सुरक्षा प्लान हैं, इनमें सुरक्षा के बारे में बात की जाती है, और एक जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण रखता है, मतलब कि बिल्कुल ही हिंसा को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कुछ कोविड के ऊपर मैसेजेस है वो भी हम आपस में बांटते हैं, ताकि सुरक्षा से के संदर्भ में जो भी बातें हो वो सब लोग जाने। हमने ये भी चाहा था कि जो कानून है उसको हम बदलें। हमारे एक प्रदेश में कुछ फाइन लगाए थे। तो जो भी लोग थूकें कर्मियों पर, उनको ये फाइन है। पर जो खुर्दा कार्यकर्ता था उन पर ये कानून लागू नहीं था। तो हमने उस कानून को लागू किया सब कार्यकर्ताओं के लिए कार्यस्थल में, ताकि ऐसे फाइन लगे उन लोगों पर जो थूके या खांसे कार्यकर्ताओं पर। हमने और भी कुछ उपाय काम में लाए, जैसे कि ट्रेनिंग, ताकि कार्यस्थलों में साइन लगाए जिस पे लिखा जाए कि कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए उपभोक्ताओं को और बाकी कर्मियों को। हम अपने सदस्यों के लिए बैज भी बनाए थे जो वो पहन सकते हैं, और उस पर बैज पर लिखता है कि हाँ मैं माँ हूँ, या मैं बेटा हूँ, या मैं एक दादा हूँ, ताकि लोग आपको ये बैज देखकर देखें कि भाई आपका भी परिवार है, और आप को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमारे जो खुदरा कर्मचारी हैं और जो सुपरमार्केट में और
खाद्य व्यवसाय में काम करते हैं उनके लिए काफी चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी मदद कर सकते हैं करते हैं। यूएनआई और भी कार्य करते हैं। यूएनआई ने भी लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ काफी कार्य किए हैं, पर कोविड के दौरान यूनी ने औरतों की स्थिति कोविड के दौरान उस पर काफी जोर दिया है और बहुत बात की है इस पर कि जो औरतों पर जो भार पड़ता है इस कोविड के दौरान वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको न सिर्फ अपने कार्यस्थल में कार्य करना पड़ता है पर अपने घर में भी पूरी परिवार का ध्यान रखना पड़ता है। तो और उसके ऊपर उनको बढ़ते हुए हिंसा का सामना करना पड़ता है घर पर भी और शोषण का कार्यस्थल पे। तो हम जो कोविड का प्रभाव लिंग के दृष्टिकोण से है उस पर हमने चर्चा की है और हमें जरूरी है कि हम इस मौके पर इस मुद्दे का सामना करें और इससे निपटने के रास्ते ढूंढें। धन्यवाद जूलिया। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैं अब कुछ ही प्रश्नों को सुनूंगी अपने अगले हिस्से कार्यक्रम के हिस्से से आगे जाने से पहले। तो आयरीन, कुछ प्रश्न हैं आपके जो आपने कहा था उसके बारे में। स्वाजीलैंड में जो स्थिति है उसके बारे में कुछ प्रश्न है। लोगों ने पूछा है कि जो सांस्कृतिक तौर से और पारंपरिक तौर पर स्वाजीलैंड की स्थिति थोड़ी फर्क है, तो इस फर्क की वजह से क्या खास प्रभाव पड़ा है औरतों, महिलाओं और बच्चों पर, और क्या आप बता सकते हैं कि कोविड के बाद कुछ फर्क पड़ा है हिंसा के तरीकों में या वही पुरानी हिंसा के तरीके हैं? कृपया करके अपना माइक ऑन कीजिए। You're still muted. Okay, am I okay now? Okay, thank you very much. The situation बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर स्वाजीलैंड में जो स्थिति है, खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य जो करते हैं उनके लिए, जैसे कि मेरी सेवा में, हमारी बिल्डिंग में, हमारे काम में हमें काम करना बंद करना पड़ा था क्योंकि कोई पीपीई नहीं प्रदान किए गए थे, कोई सुरक्षा कवच नहीं दिया गया था और कुछ मुश्किल हुई थी हमारे प्रबंधकों के साथ, क्योंकि हमें कार्य सिर्फ सुरक्षा कपड़ों के साथ करना था, तो और वो तैयार नहीं थे वो देने के लिए, इसलिए हमने अपना काम बंद कर दिया था क्योंकि जो पीपीई उन्होंने दिए थे वो काफी नहीं थे, वो ठीक नहीं थे, उचित नहीं थे। तो अगर आप मास्क पहन रहे थे तो लोग कह रहे थे बस ये काफी है, आप जाकर अपने पेशेंट्स को देख सकते हैं, जो पीड़ितों के लिए काम कर सकते हैं। हमारे जो आइसोलेशन वार्ड है, मतलब जहाँ पर लोगों को अलग रखते हैं, जो पीड़ितों को अलग अलग रखते हैं, हमने देखा है कि काफी सारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जिनको कोविड-19 की बीमारी लग गई थी, ये रोग लग गया था, क्योंकि उनके पास जो सुरक्षा के उपकरण थे वो उचित नहीं थे, कम थे। और एक ही वार्ड में, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, एक ही वार्ड में 4 से ज्यादा पीड़ित हैं और अगर 4 से ज्यादा पीड़ित हैं तो जो कोविड की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जो कोविड मुझे है वो मेरे साथ वाले पीड़ित को नहीं है, वो थोड़ा फर्क है उसमें। और कई पीड़ित हैं जिनको ज्यादा वक्त लगता है कोविड से उबरने के लिए। और फिर भी आप उनको साथ साथ एक ही वार्ड में पाते हैं और जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनको उनके साथ करना पड़ता है। और स्वाजीलैंड में अगर आप परंपरा देखें तो औरतें जो हैं वो समुदाय में अपनी आवाज नहीं उठाती, उनको डर लगता है अपनी आवाज उठाने में।
वो चुप ही रहती हैं, अपने घरों में बंद रहती हैं। वो अपने आदमियों के साथ जो अपराधी हैं, जो उन पर हम हिंसा करते हैं, उनके साथ रहते हैं और कुछ नहीं कहती। तो जो संस्थाएं इस पर काम करती हैं, ये लिंग आधारित हिंसा पर काम करती हैं, उनके पास कुछ प्रणालियां हैं जिसके जरिए जो औरतें हैं वो रिपोर्ट दर्ज कर सकती हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है जब ये औरतें घर पे रहें और उन्हें डर लगे और वो रिपोर्ट ना करें और उन्हें रिपोर्ट करने का मौका ना मिले। और ये जो औरतें हैं, एक बार घर से निकलते हैं तो जो उनके मर्द हैं उनको कहते हैं, नहीं, आप अगर बाहर जाओगे तो वापस आओगे तो हमें भी बीमारी लग जाएगी, तो आप नहीं जा सकते। तो जो औरतें हैं वो बाहर ही नहीं निकलती घर से और फिर रिपोर्ट भी नहीं कर सकती कि भाई मेरे खिलाफ हिंसा हो रही है। अगर हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार की हिंसा होती है, तो हमें ये देखना होता है कि इमोशनल मतलब जो मानसिक तौर से क्या इसका प्रभाव होता है। इससे काफ़ी भय पैदा होता है, इससे तनाव पैदा होता है, इससे लोगों को वरी होती है, क्योंकि उनको जो पैनिक हो जाता है, बहुत डर लगता है उनको। वो उनको ये डर लगता है कि ये बीमारी बहुत जल्दी से बढ़ती जाएगी, लोगों को जल्दी-जल्दी हो जाएगी और इससे हम मर भी सकते हैं। तो ये जो डर है, ये जो भय है इनका, ये जो डिप्रेशन होता है इसकी वजह से, वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन ये इनको समझ नहीं आता कि अभी 285,000 ऐसे कुछ केस हैं, मामले हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन जो रोज़-रोज़ ऐसे नए-नए मामले आ रहे थे, कोई काफ़ी नए-नए लोगों का पता चल रहा था, उनकी पुष्टि हो रही थी और लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं जो ठीक हो रहे हैं। ये ऐसे 168 ऐसे केस हैं और तो जो भी महिलाएँ घर पे भी हैं, उनको भी डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि वो अपने आदमियों के, अपने पतियों की उनको सहारा देती हैं, उनके बच्चों के बारे में उनको डर लगता है, तो इसलिए वो रिपोर्ट नहीं करती अगर उनके प्रति हिंसा होती है। जूलिया, जूलिया, हमने इसके बारे में बात की। सॉरी, मेरे अभी कान में कुछ और भाषा आ रही थी। जूलिया, क्या यूनियन ने जो ये संधि 190 है, क्या यूनियन ने इसका इस्तेमाल किया है? जब आपकी बातचीत हुई है नियोक्ताओं के साथ इस महामारी के दौरान? पता नहीं, मुझे कुछ और भाषा अंग्रेजी में सुनाई दे रही है। हो सकता है कि इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? Yes, I did. जूलिया, Yeah, आपने क्या मेरा सवाल सुना? हाँ जी, मुझे आपका सवाल सुनाई दिया। I think it has changed. हाँ जी। I think they are taking sexual harassment. और जो यौन उत्पीड़न है उससे इसको काफ़ी सीरियसली लिया जा रहा है और मुझे लगता है कि जो हमारी ये जो संधि 190 है उसका काफ़ी प्रभाव हुआ है हमारी नियोक्ताओं के साथ जो बातचीत होती है। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या औपचारिक तरीके से कोई इसमें उपाय लाए गए हैं, तो नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। उनको सरकारी तरफ से इस संधि को स्वीकार करना पड़ेगा और तभी कुछ मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो पाएगा। धन्यवाद जूलिया। मैं जो अनुवादक बताना चाहती हूँ, जो कोरियन है वो अंग्रेजी चैनल पे आ रहा है और तो शायद कुछ माइक की प्रॉब्लम होगी। आप कृपया इसको ज़रा ठीक कर दें। जूलिया, बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि हमारे पास समय कम है और जो बाकी हमारे प्रवक्ता हैं उनसे भी हम सुनना चाहेंगे, लेकिन
मैं आपसे ये निवेदन करूँगी, अगर आप ये चैट नीचे जो काली पट्टी है उसमें एक चैट बटन है, उसमें भी आप बहुत सारे ऐसे किस्से आपको सुनाई देंगे, लोगों ने अपनी वहाँ पे टिप्पणियाँ दी हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि दूसरी संस्थाओं, दूसरे संघों में, दूसरे यूनियन में लोग कैसे उपाय अपना रहे हैं। तो आप ये सब चैट पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे पता चल रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे संघ हैं, काफ़ी यूनियन है जहाँ पे एक हॉटलाइन होती है, एक फ़ोन लाइन होती है जहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आपको सहायता की ज़रूरत है। और ये ऐसी काफ़ी प्रक्रिया हैं जो हमने अपनाई हैं इस महामारी के दौरान और ये हम आगे भी करते जाएँगे। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिनको जानकारी चाहिए इसके बारे में कि हम अभी इससे कैसे निपटें, तो आप जो लिंक यहाँ पे चैट में लोग दे रहे हैं, उनके ऊपर आप क्लिक करें तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। मैं आइरीन और जूलिया को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और अगर आखिर में और कुछ समय रहेगा हमारे पास तो और उनके लिए आप सवाल कर सकते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अगले जो बोलने वाले हैं वो फिश हैं। वो कोऑर्डिनेटर हैं एशिया पैसिफिक में जो IDWF के मतलब घरेलू कामगारों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ, उन्होंने हांगकांग वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन वहाँ पे स्थापित किया। वो चीन में सबसे पहला ऐसा यूनियन था और 2010 में उन्होंने लोकल और जो प्रवासी ऐसे काम कर्मी हैं उनकी यूनियन स्थापित की हांगकांग में। हम सबको पता है कि जो घरेलू कामगारों की स्थिति है वो और खासकर प्रवासी कामगारों की उनकी स्थिति बहुत ही व्याकुल है, काफ़ी कठिन है उनकी परिस्थिति क्योंकि वो अपना देश छोड़ के किसी और देश में है और इसलिए उनके लिए जोखिम बहुत ज़्यादा है। काफ़ी सारे उनमें से अभी भी काम कर रहे हैं और उनके पास कोई भी सुरक्षा उपकरण कुछ भी नहीं है उनके पास। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो काम से निकाले गए हैं, अब जो उनके पास अब कोई कमाने का तरीका नहीं है। तो इनके बारे में अब हम सुनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं आपके सामने अपने बात बताऊं। तो मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हिंसा हो रही है कार्यस्थलों पे वो ऐसे हो रही है कि बहुत ज़बरदस्त हिंसा और शारीरिक हिंसा हो रही है, मानसिक हिंसा हो रही है और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये जो कामगार हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आइरीन ने अभी बताया और जैसे जूलिया ने भी बताया, जो महिला कर्मी हैं, जो घरेलू कामगार हैं, जो अपने पेशेंट्स का जो नियोक्ता हैं उन सबकी देखभाल कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इस महामारी के दौरान। लेकिन इस महामारी से पहले भी हमने हिंसा उनके प्रति देखी थी, लेकिन अब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें बिल्कुल गुस्सा आ रहा है कि जो सरकार है वो इस हिंसा हमारे प्रति ये जो हिंसा हो रही है उसके प्रति उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। हम फ्रंट लाइन में इस महामारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसलिए हम बड़े अपसेट हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है। हमको कम वेतन दिया जाता है और कोविड के साथ हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आ गई हैं। जो घरेलू कामगार हैं, वो जो किसी के निजी मतलब उनके घरों में काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के साथ वो उन घरों में बंद हैं। वो अपने देशों में जो प्रवासी ऐसे कामगार हैं, वो वापस नहीं जा सकते अपने देश। वो बंद ही रहते हैं उन घरों में और उनके प्रति हिंसा हो रही है। उनके जो काम देने वाले जो आप समझिए उनके जो नियोक्ता हैं, वो भी उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। ये जो उनके प्रति हिंसा और उत्पीड़न किया जा रहा है, वो हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते
और हमें इसका जवाब ढूंढना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोविड के दौरान हमारे जो स्वतंत्रता, हमारे अधिकार, हमारी सुरक्षा, ये सब जो चीजें हैं वो एक तरफ रखे जा रहे हैं, इनका उल्लंघन किया जा रहा है। उनके ऊपर जो श्रम कानून है वो वैसे ही नहीं लागू होते हैं, और कुछ ऐसे भी कानून हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ, वो भी उसके अंतर्गत नहीं आते, और उनका काफी शोषण होता है। और अगर हम पुलिस से बात करते हैं तो वो इसके बारे में आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, इसको अनदेखा कर देते हैं। और महामारी के दौरान जो प्रवासी कामगार हैं, जो इस अभी दूसरे साइड से यहाँ पे आए हैं, उनको उनका काफी शोषण हो रहा है। जो घरेलू कामगार हैं वो कई बार अपने जो उनको काम देने वाले हैं, जो उनका जो परिवार उनको काम दे रहा है, वो उनके साथ उनको कई जगह जाना पड़ता है, और उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो कामगार हैं उनके लिए लोग कहते हैं कि तुम ये बीमारी यहाँ पे ला रहे हो, तुमने ये बीमारी यहाँ पे, तुम मतलब ये बीमारी यहाँ ला रहे हो, तुम बीमार हो। तो उनके साथ ये काफी बुरा मतलब बर्ताव किया जा रहा है, क्योंकि वो किसी गरीब देश से आए हैं। तो वो लोग समझते हैं कि ये लोग इस बीमारी को ज्यादा जल्दी पकड़ लेंगे, तो इसलिए उनको बाहर भी नहीं जाने दे रहा, कोई उनको बाहर जाने नहीं दे रहा, वो कहीं जा नहीं सकते। लेकिन साथ साथ फिर भी उनके जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो उनको भेजते हैं बाजार में, उनको इधर उधर शॉपिंग के लिए भेजते हैं। तो इसलिए उनको ये बीमारी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे भी देश हैं जैसे मलेशिया, वो इस दौरान कोशिश कर रहे हैं कि वो जो प्रवासी जो कामगार हैं, जो घरेलू कामगार हैं, उनके लिए वो उनको थोड़ा और निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पहले भी उनके लिए काफी कानून जारी नहीं थे, वो कानून के नजरिए से बाहर थे, लेकिन अब ये और भी हो रहा है, उनको धकेल दिया जा रहा है कोने में, और इसकी वजह से हिंसा के भी जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब इस महामारी के दौरान हो रहा है। जैसे मैंने बताया, लॉकडाउन के समय इनको कई बार खाना नहीं दिया जाता, उनको गालियां दी जाती हैं, वो उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता, और वो इस समय कहीं जा भी नहीं सकते, काम छोड़ के कोई और नया काम भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि प्रवासी कामगार होने के नाते अगर आप अपने इस घर को छोड़ दें, इस नियोक्ता को छोड़ दें, तो आप और कहाँ काम ढूंढेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप कहीं जा ही नहीं सकते, आप अपने एम्बेसी भी नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। तो आपके पास और कोई उपाय नहीं है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल चुपचाप ये शोषण सहना पड़ता है, और ये सब महामारी की वजह से है। अभी तक ये सरकार इसको अभी तक मतलब स्वीकार कर रही है, कुछ कह नहीं रही है। वो अभी तक जो प्रवासी कामगार हैं उनकी तरफ मतलब उनको कह रहे हैं कि ये इसके लिए जिम्मेदार हैं, बीमारी के लिए। कई सारे देशों में ऐसे प्रवासी कामगार हैं, और उनको इमिग्रेशन में उनको वहाँ पे पकड़ा जाता है, वो इमिग्रेशन सेंटर में उनको भेजा जाता है, और इन संस्थाओं, इन ये जो डिटेंशन केंद्र होते हैं उनमें हालात बहुत ही खराब होते हैं। इसलिए वहाँ पे उनको कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए वहाँ पे उनको कोई मास्क भी नहीं दिया जाता। तो
हो सकता है कि वो वहाँ पे उनको बीमारी लग जाए, उनको ये भी नहीं मालूम कि फिर वो वापस कब उनको जाने दिया जाएगा। तो जो इमिग्रेशन ऐसे सेंटर होते हैं, वहाँ बताया नहीं जाता इन कामगारों को कि वो कब निकल सकते हैं, कब वापस जा सकते हैं, तो इसलिए उनके ऊपर काफ़ी मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे यूनियन हैं और जो हमारे साथी जो यूनियन है, हम काफ़ी जल्दी इस महामारी के दौरान जवाब देना मतलब कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ कदम उठाएं। काफ़ी सारे ऐसे घरेलू कामगारों के जो संस्थाएं हैं वो अपने ही लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी कमेटी मीटिंग्स हो रही हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो समस्याएं सामने आ रही हैं घरेलू कामगारों के लिए उसका हम कोई उपाय ढूंढें या उनकी सहायता करें। जो घरेलू कामगार हैं उनको सामाजिक सुरक्षा की जो पेमेंट्स होती हैं वो नहीं मिलती, और अगर कोई आर्थिक पैकेज जो दिया जाता है बाकी जो कामगार हैं, बाकी जो कर्मी हैं, उनको अगर ऐसे आर्थिक कोई पैकेज सरकार की तरफ से दिए जाते हैं तो ये जो घरेलू कामगार हैं और वो इसमें कवर नहीं होते। तो हम ये चाहते हैं कि ये पैकेज जो भी सरकार देती है इन कामगारों को भी मिले, और जो प्रवासी ऐसे कामगार हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो अपने कानून और उनकी नीतियों को दोबारा परखें। जो हमारी संधि है 190, ये एक उन सबको स्वीकार करनी चाहिए और इसके जो प्रावधान हैं सारे ही नीतियों, सारे ही कानूनों में इनको शामिल किया जाना चाहिए। खासकर इमिग्रेशन का जो कानून है, क्योंकि हमने ये देखा है कि इसमें जो उनके बगैर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है वो इस दौरान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हमको जहाँ सामाजिक सुरक्षा, इसमें भी इनको शामिल किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। फिश, बहुत धन्यवाद आपका। हमें मालूम है कि जो घरेलू कामगार हैं वो भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे देशों में इन्हें फ्रंट लाइन कर्मी नहीं माना जाता, लेकिन काफ़ी सारे देश ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि ऐसे जो घरेलू कामगार हैं जो देखभाल वाले क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको ये पद दिया जाए, उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जो कामगार हैं वो उनके जो वेतन में से कटौती होती है और वो उनके सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया में उनके सिस्टम में चला जाता है, लेकिन उसमें से उनको कोई पेमेंट्स नहीं मिलती। तो सिर्फ प्रवासी जो संस्थाएं हैं, सिर्फ प्रवासी संघ हैं और उनकी जो संस्थाएं वो ही इसके बारे में काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी संस्थाएं मिलके इस विषय को उठाएंगी और हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी ऐसे प्रथाएं हों या जो भी ऐसी प्रक्रियाएं हों वो ऐसे कामगारों के लिए भी या उनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। और हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसके ऊपर हम जोर दें ताकि इनको भी हर एक ऐसी सुरक्षा प्रोग्राम में, सारे सुरक्षा कानूनों में उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये भी कामगार हैं, ये भी हर दूसरे कामगार की तरह कामगार हैं, ये भी ऐसे कर्मी हैं, तो उनको भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए। अभी फिलहाल तो कोई सवाल नहीं आए हैं ऑडियंस से, लेकिन बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी दी है और वो भी इस बात को दोबारा ये दोहरा रहे हैं कि आपने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास डाटा है उन देशों के बारे में जहाँ पे ऐसे घरेलू कामगार हैं जिनके प्रति उत्पीड़न हो रहा है, जिनके प्रति हिंसा हो रही है, या आपको कुछ ऐसे पता है ये जो देश हैं जहाँ से ऐसे प्रवासी कामगार आ रहे हैं, क्या जब वो वापस जा रहे हैं अपने देशों में
तो countries not responsible for COVID. We've heard तो those वो stories भी as वहाँ पे well, बताया जा रहा है कि उनको from किसी वेवर को the साइन domestic करना होता workers कि that भाई are migrant ताकि उस देश में agricultural कोई workers. उनको कोई So जिम्मेदारी again, नहीं do you have लगती any उनके ऊपर। data तो that क्या आपके पास you ऐसा can कोई share with डाटा us? है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? Currently, we haven't yet very comprehensive data. अभी We तक तो have हमारे पास ऐसा कोई बहुत सारा डाटा नहीं आया है। हमारे जो कुछ साथी संस्थाएं हैं उन्होंने सर्वेक्षण किए हैं, लेकिन डाटा नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी लोगों के बयान आए हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जैसे हमने सोशल मीडिया में ऐसे काफ़ी सारे बयान सुने हैं, सिंगापुर में ऐसे के हैं, मलेशिया में मैंने अभी आप इसका जिक्र तो किया ही था, मैंने मलेशिया की सरकार के बारे में बताया आपको कि वो भेदभाव कर रहे हैं ऐसे प्रवासी कामगारों के बारे में। सिंगापुर में भी वहाँ पे ये महामारी की वजह से वहाँ पे उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे ये सारे प्रवासी कामगार उनको वहाँ पे डाला गया है, वो वहीं पे सोते हैं। तो उनके साथ वो मतलब आप समझ सकते हैं वो काफ़ी बदनाम हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही बुरे तरीके का भेदभाव है। हांगकांग में हमने देखा है कि हमारा यहाँ पे एक महामारी यहाँ पहले हुई थी, जनवरी में हुई थी। तो उस समय सरकार ने जो प्रवासी कामगार है उनको उन ऐलान किया कि उनको घर पे रहना चाहिए और उन्होंने ये बताया कि जो प्रवासी कामगार हैं उनको इतना बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको घर पे ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बकवास है और हमने ऐसे बहुत सारे बयान सुने हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार का भेदभाव हो रहा है वो कई सारे देशों में हो रहा है और हांगकांग में भी हम लोगों को, हमारे सदस्यों को कह रहे हैं कि उनको रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए, दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि हांगकांग में एक ऐसा कानून है। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है और आप अगर माना जाता है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको बताया जाता है कि नहीं, तो आपने को नौकरी से आप निकाले जाते हैं, तो ये कानून के खिलाफ है। तो इसकी रिपोर्ट हम अपने सदस्यों को कह रहे हैं कि वो उनको दर्ज करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इसके बारे में एक सर्वेक्षण करना ज़रूरी है ताकि ये सब भेदभाव को रोका जा सकता है। एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगी वो ये है कि एक ही कानून से ये भेदभाव खत्म नहीं होगा। हमें बहुत सारे कानूनों में इसके प्रावधान लाने होंगे और हम जो हमारे संधि 190 में जो इसकी परिभाषा दी गई है उसको बहुत सारे कानूनों में लाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। Really important that तो both of them. बहुत अहम बात है कि 169 और 190 79 और 190 संधियां साथ साथ लिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी के लिए जो आपने हमारे साथ साझा किया। मैं जानती हूँ कि हम अगर और जानकारी चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और जो उपकरण और लिंक दिए गए हैं चैट में उसके जरिए भी हम जानकारी पा सकते हैं। हमारी अगली वक्ता शीला है, वो उप अधिकारी है MSTAS के इंडिया भारत में। वो एक नई समीक्षा की जा रही है कर्मियों के खिलाफ हिंसा के बारे में और वो अपराधियों के ऊपर भी समीक्षा कर रहे हैं और घरेलू हिंसा पर समीक्षा कर रहे हैं। तो शीला, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप कुछ हमें साझा करें आपकी समीक्षा के नतीजों के बारे में। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आएंगे आप के बातचीत के बाद, क्योंकि घरेलू हिंसा पर आपने, जैसे कि आपने देखा, बहुत सारे प्रश्न आए थे और बहुत रुचि दिखाई गई है। धन्यवाद शीला।
बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अच्छा और चैलेंजिंग रहा। भारत में एक काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। पहली बार किसी सर्वे पर 16,000 महिलाओं ने ऑनलाइन डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में जानकारी दी है। इन महिलाओं तक हम पहुंचे हैं। मेरी यूनियन ने पहली बार इस तरह का काम किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का कामकाज पर क्या असर होता है। और मेरी जो ट्रेन वुमेन एडवोकेट्स थी, जिनको हम निर्भया कहते हैं, वो निर्भया ने इस काम में जी जान जोड़कर काम किया है। उन्होंने अपनी छुट्टियां ली, अपने पैसे खर्च करके हमने निर्भया परिक्रमा का अभियान किया। निर्भया परिक्रमा माने हमने पूर्ण महाराष्ट्र में हर डिवीजन में हम जाके महिलाओं के साथ मिले, उनके साथ मीटिंग कंडक्ट किया और उनके साथ बातचीत की। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कई महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं थे, कई महिलाओं का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते पता नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट वुमेन के साथ ही बात नहीं की। समाज की कई ऐसी महिलाएं जो कि हेल्थ वर्कर है, नर्सेस है, टीचर है, बैंक कर्मचारी है, मजदूरी करने वाली है, खेती में काम करने वाली है, झाड़ू पोछा करने वाली है, इन सब महिलाओं के साथ हम इंटरेक्ट हुए, उनके साथ बात की और हमको एक बहुत अच्छा अनुभव आया कि हम उनके साथ बात कर पाए। उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हम उनके तक पहुँचे, उनका दुख, उनकी वेदना हम समझ सके। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। 8,000 महिलाओं को हम पूरे सर्वे में मिल चुके थे। और मेरी जो निर्भया है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया। जब हम ये काम कर रहे थे तो कम्युनिटी के बहुत अलायंसेस के साथ भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था। वैसे तो पहले से ही हम इनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस के सर्वे में कई संस्थाओं ने हमको मदद की, जिनके साथ हमारे बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे, जैसे कि पुलिस है, मीडिया है, वकील, लीगल एडवाइजर है, NGO है, स्टूडेंट्स है, इन सब ने हमको काफ़ी मेहनत की। मेरी निर्भया एडवोकेट ने इस काम से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और एक स्टिग्मा जो था कि डोमेस्टिक वायलेंस का, और तोड़ने में या उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने में मेरी निर्भया कामयाब हुई है। कोविड के लॉकडाउन की पीरियड में डोमेस्टिक वायलेंस का और कम्युनिटी अलायंसेस का हमको बहुत अच्छा अनुभव आया। मेरी एक महिला जो रोड ट्रांसपोर्ट में काम करती है, उसको अनचाहा गर्भ रह गया लॉकडाउन के पीरियड में। वो उसको गिराना चाहती थी, अबॉर्शन करना चाहती थी, लेकिन बाहर तो पूरा बंद था और उसका पति उसको इतना परेशान कर रहा था, वो उसको ही गाली गलौज कर रहा है। ऐसे टाइम पे उसने हमको फ़ोन किया। फिर हमने हमारे कम्युनिटी अलायंसेस में सम्यक नाम उनकी संस्था है, उनको हमने किया। वो संस्था ने इस महिला को अच्छा मार्गदर्शन किया और उसका अबॉर्शन सेफली हो गया। सेकेंड इंसिडेंट था कि डोमेस्टिक वायलेंस में घर में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे थे, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्कर इसके कुछ एक्सपर्ट्स ने, हाँ मुझे कुछ कहना है, ये ऑनलाइन फोरम चालू किया था। तो वो फोरम के साथ भी हमने टाई अप किया। उसमें कई महिलाओं ने इन एक्सपर्ट महिलाओं के साथ बात करके घरेलू हिंसाचार से कैसा ओवरकम करने का, मानसिकता कैसी बढ़ाने की, काउंसलिंग का सब फायदा ले लिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कम्युनिटी अलायंसेस के साथ रिलेशन बिल्डअप होने से हमको एक बहुत अच्छा फायदा हो गया कि लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का जो ज़्यादा परिणाम होने वाला था वो कम हो गया। हम और अच्छा काम कर सकते थे। 2 महीने हमने काम किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमको ये काम मार्च में रोकना पड़ा। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमने बहुत अच्छे तरीके से ये अभियान में काम किया है। Okay, thank you, Sheila. There are a number धन्यवाद शीला। questions and comments with respect काफी सारे प्रश्न और टिप्पणियां आई हैं घरेलू हिंसा के बारे में और आपकी समीक्षा के बारे में, we could और focusing on शायद हम कुछ प्रश्न आपके सामने ला सकते हैं। all the questions are coming in quickly and मैं देख रही हूँ कि काफी सारे प्रश्न आ रहे हैं। so I know that the issue of domestic मैं जानती हूँ कि घरेलू हिंसा का जो मुद्दा है वो बहुत बिल्कुल सामने आ जाता है महामारी के पहले भी और महामारी के दौरान, खासकर शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बहुत जरूरी है कि जानकारी फैलानी चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि खासकर महिलाएं घर में बंद हैं
उनको कोई समर्थन नहीं दे रहा है जिसकी उनको जरूरत है। तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे देशों में पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा के अनाउंसमेंट घोषणा करते थे रेडियो पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, ताकि जो लोगों को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा था वो जान पाए कि उनको कहाँ पर समर्थन मिल सकता है। तो यूके में एक ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने भी एक ऑनलाइन हॉटलाइन लगाई थी ताकि जो महिला इस हिंसा का सामना कर रही है वो इस हॉटलाइन पर उनके साथ बात कर सकते हैं। तो मैं लोगों को कहूंगी कि आप TUC के वेबसाइट पर जाइए, आप देखिए कि उन्होंने क्या किया है घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के बारे में, हॉटलाइन वगैरह के बारे में। जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ है उनके वेबसाइट पर जा सकते हो। उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू किया है जो ऑनलाइन हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ उसके बारे में। कुछ फैसिलिटेटर्स की ट्रेनिंग पर भी उन्होंने टिप्पणियां दिया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बहुत सारे ऐसे देशों में ऐसे लेबर सेंटर है जो जिन्होंने अलग अलग प्रक्रिया जारी की है। तो आप सब में से अगर आपने अभी तक आपके पास वक्त नहीं मिला कि आप ये सारे उपकरणों का अध्ययन करें, तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इनको देखें ताकि आप भी साझा कर सकते हैं। एक प्रश्न है सब पैनलिस्ट के लिए, अगर आप कुछ बात रखना चाह रहे थे जो आपको मौका नहीं मिला उसको कहने के लिए, तो आप अब कह सकते हैं। किस हद तक अलग अलग तरीके के यौन शोषण, चाहे रेप हो, चाहे बच्चों का शोषण हो, चाहे घर पे हो, कार्यस्थल पर हो, ऑनलाइन हो, तो कैसे ऐसे अलग अलग तरीके के ऐसे शोषण होते हैं। तो जब जो शेल्टर्स हैं औरतों के लिए बहुत कम हैं क्योंकि निधि कम है बहुत सारे दशकों के लिए, और बेड्स नहीं थे औरतों के लिए जो जिनको ऐसे शोषण और हिंसा का सामना किया था। तो हमने अपनी सरकार को बोला था कि वो ज्यादा निवेश करें ऐसे प्रोग्राम में ताकि हम और ऐसी जगह बना सकें ऐसे औरतों के लिए। तो मैं पैनलिस्ट से पूछूंगी कि आपके देश में, आपके व्यवसाय में, आपके उद्योग में क्या हो रहा है खास इस मुद्दे पर? क्या कोई है जो कुछ कहना चाहेगा इसके ऊपर? क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम घरेलू हिंसा के बारे में कह सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, बेल्जियम, ताइवान, मंगोलिया, मैंने कनाडा की भी बात की है। हमने देखा है कि आधे से ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने घरेलू हिंसा का सामना किया वो कार्यस्थल में भी उनको शोषण का सामना करना पड़ता है, और 45% ऐसी महिलाओं ने कहा है कि इस पर प्रभाव पड़ता है उनके कार्य करने की क्षमता पर और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उनके परफॉर्मेंस पर। तो हमने देखा है कि कार्यस्थल में महिलाओं के लिए खासकर एक ये सुरक्षित जगह उनको मिलती है ज्यादातर, और ये जो नियोक्ता है उनको ये सुरक्षा प्रदान करती है सबके लिए। ये ना सिर्फ घरेलू हिंसा को बंद करने की बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और कैसे समर्थन दे सकते हैं लोगों को, और कैसे रोक सकते हैं उन लोगों को जो हिंसात्मक, जिनका हिंसात्मक व्यवहार है अपने परिवार के साथ, अपनी महिलाओं के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ। जो उपकरण हमारे सामने आए हैं जैसे कि 190 संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसको हम कैसे काम में लाएं, इसके बारे में भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं ताकि हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सके अपने नियोक्ताओं के साथ।
क्या आपके देशों में कुछ ऐसी वार्ता हुई है अपने नियोक्तों के साथ कोविड के दौरान, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी काम कर रहे हैं या कार्यस्थल में या घर में? क्या कोई ऐसी नीतियां लागू हुई हैं जो इन कर्मियों को मदद कर सके कोविड के दौरान? कुछ ऐसी चीजें बताइएगा हमें। Well, can I say something? Yes, can I say something? Irene, In terms of collective bargaining, जहाँ तक does not somehow that is the terms and condition of कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात रही, as healthcare सामूहिक सौदेबाजी की बात रही in the नियोक्ताओं के साथ, कोविड के दौरान ये हुआ नहीं है, लेकिन जो आपातकालीन समिति है उसके अंतर्गत हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ये मुद्दे उठा रहे हैं। ऐसे भी हुआ है कि अस्पतालों में या स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर कई लोगों को जिनको पीपीई नहीं मिली थी, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था ताकि वो जोर लगा सकते नियोक्तों पर ताकि वो पीपीई उनको प्रदान करें। क्योंकि हम देखभाल का काम करते हैं, हमने ये भी मांग रखी थी कि हमें एक स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, क्योंकि कुछ कानून है हमारे देश में कि जिसके जरिए एक अलाउंस मिलती है, कुछ जो संचारी बीमारी हो, रोग हो, जब वो चले तो जो कार्य करते हैं उस स्थिति में उनको ना सिर्फ स्वास्थ्य बीमा का हक है, पर कुछ अतिरिक्त आमदनी की अलाउंस पर भी हक है। अब हमने देखा है कि ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मचारी हमारे देश में है वो काम बंद कर रहे हैं, जो प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं वो भी काम बंद कर रहे हैं, ताकि हम दबाव डाल सकते हैं नियोक्ताओं पर और सरकार पर, ताकि हमें अपने हक मिले और ताकि हमें इस कोविड के दौरान हमें कुछ ये स्वास्थ्य बीमा मिले और ये अतिरिक्त निधि मिले, ताकि और एक बार ये कोविड खत्म हो तब हम वार्ता फिर से शुरू करेंगे नियोक्तों के साथ, ताकि एम्प्लॉयर्स के साथ, ताकि अगर हमें ये अधिकार मिल जाए अभी तो हम चाहेंगे कि वो आगे भी चले, तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं बाद में उनके साथ। धन्यवाद आइरीन। तो एक और क्लिप है शीला की तरफ से, मुझे पता नहीं कि वो तैयार है आपको दिखाने के लिए, जो हम साझा कर सकते हैं, और एक वीडियो है उसकी तरफ से। शीला, हाँ शीला बोलिएगा। काम की जगह इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। हमने जब ये सर्वे किया, कई महिलाओं के साथ हम मिले, तो कई सारे महिलाओं ने कहा कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम कुछ कमा रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि हम इस परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से उसको हम फेस कर रहे हैं। अगर हमको नौकरी नहीं होती, हम अगर काम की जगह पे नहीं होते, हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। जब एक काम की जगह महिलाओं के लिए एक कंफर्टेबल प्लेस है, कंफर्टेबल जोन वो महसूस करती है। किसी महिलाओं के साथ जब कौटुंबिक हिंसाचार होता है तो घर में उसके साथ इंसल्ट किया जाता है और उसकी वजह से उसकी मानसिकता वो बहुत नाराज रहती है, डिप्रेशन में रहती है, हर समय वो तनाव में रहती है और वो चाहती, उसका दम घुटता है और वो चाहती है कि इस जोन से बाहर निकलो। और जब वो काम की जगह पे जाती है तो अपनी कई सहेलियों के साथ अपनी बातें शेयर करती है। वहाँ पे वुमेन एडवोकेसी की हमारी ट्रेन महिलाएं होती है, उनके साथ वो बात करती है, उस पर क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए चर्चा होती है। किसी डॉक्टर के साथ, किसी पुलिस के साथ, लीगल एडवाइजर के साथ वो बात करती है, काउंसलिंग कर सकती है। ये सब बातें वो वर्क प्लेस पे कर सकती है। घर में वो ये कर नहीं पाती क्योंकि उसके साथ मारपीट करने वाला पति उसके सामने होता है, इसलिए वो ये कुछ नहीं कर पाती है। तो कई महिलाओं ने हमको ये कहा कि काम की जगह उनके लिए एक बहुत अच्छा फीलिंग देने वाला स्थल है, वो वहाँ पे बहुत सुरक्षित महसूस करती है और वो चाहती है कि कई लोगों ने तो ये कहा कि हमारे यहाँ पे दम घुटता है और जब हम काम की जगह पर जाते हैं तो हमको शांति मिलती है, सुरक्षा मिलती है और
इस परिस्थिति से लड़ने की ताकत हमें काम की जगह पर मिलती है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कहना चाहती हूँ कि आईएलओ का जो कमीशन है पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस पर हो रहा है, और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के इस सर्वे ने और ये महिलाओं का ये जो बातचीत है, उनकी जो अनुभव है, इससे कन्वेंशन होना चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस इशू है और ये डोमेस्टिक वायलेंस कामकाज का हिस्सा है। ये यूनियन को मानना चाहिए, शासन को मानना चाहिए और प्रशासन को भी मानना चाहिए। Thank you. So we know that the various things that we deal with during this pandemic are. हम जानते हैं कि इस महामारी के दौरान We also know जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इन मुश्किलों का सामना महिलाएं बहुत दशकों से कर रही हैं, हजारों सालों से कर रही हैं, और कई जगहों में इस कोविड के दौरान जो मजदूर संघ है उन्होंने ये दबाव डाला है ताकि महिला कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के जो समर्थन था, जो वो उन्हें मिले, जो पीपीए है वो मिले, जो कार्यस्थल पर जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए जो जरूरी है वो है। और राजनीतिक स्तर पर भी ये जरूरी है कि ये सकारात्मक व्यवहार हो ताकि ये सब हम अधिकार पा सकें। और अगर आप कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, सामूहिक वार्ता कर रहे हैं अपने नियोक्ताओं के साथ, तो अगर कोई भी अधिकार आप पाए तो उनको आगे ले जाना पड़ेगा एक बार कोविड खत्म हो जाए, क्योंकि हम समान स्थिति में फिर से नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि सरकारें अब दबाव में आकर क्या कर सकती हैं, और हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी ताकि जो भी हम अधिकार पाए अभी कोविड के दौरान, उसको हम कोविड के बाद भी जारी करें। ये जरूरी है कि हम दबाव डालते जाए C-190 के हस्ताक्षरण के लिए। हमें जो भी अधिकार दे सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं अपने महिला कर्मियों के, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को खासकर, वो हम प्रदान करें, इसके लिए दबाव डालें। हमने बहुत दशकों से ये बात कही है और अब ये मांगना खत्म है। अब हम कहेंगे कि ये चीजें होनी चाहिए और आज होनी चाहिए, और हम सब इकट्ठे मिलकर एक एक देश में, अलग अलग देश में ये दबाव डालें अपनी सरकारों में पर, तो हम बदलाव ला सकते हैं। मैं पैनल से आप पूछूंगी कि अगर आपके पास और कोई टिप्पणियां हैं जो आप करने चाहेंगे। हमारे पास 3 मिनट बाकी हैं, तो आप अपने प्रश्न या टिप्पणी दे सकते हैं। अपना हाथ उठाइएगा अगर आप कुछ टिप्पणी दे सकते हैं। जूलिया, आप को पहले आमंत्रित करते हैं, अगर आप फिर फिश और फिर आयरीन। बहुत धन्यवाद। मैं फिर से ये बताना चाहती हूँ कि महिलाओं को, जो आपने बोला है कि उनको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और उनकी भी आवाज़ सामने आनी चाहिए, और काफ़ी सारे सरकारों में ऐसे है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, वो वहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं उनमें वो सम्मिलित हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। जो प्रतिबद्धताएं सरकारें करती हैं उसमें भी महिलाओं को शामिल होता है, उसमें जो भी विश्लेषण होता है, जो भी नीतियां बनती हैं, उसमें महिलाओं को शामिल होना चाहिए, क्योंकि इससे ही सुनिश्चित हो सकता है कि इसमें महिलाओं के ऊपर एक सकारात्मक परिणाम हो, और हमें ये लड़ाई, ये जंग हमें जारी रखना पड़ेगा। तो मैं ये इस के बारे में आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत धन्यवाद जूलिया। फिश, क्या आप आखिर में कुछ बताना चाहोगे, कोई टिप्पणी आपकी? हाँ जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो समस्या ये है क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके पास पावर नहीं है,
यही सबसे इस समस्या का जड़ है। तो इसलिए हमको एकजुट होना पड़ेगा और ऐसे मुश्किल समय में जब लोग विस्तृत हो रहे हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमें ये जंग और आगे लड़नी पड़ेगी। और यहाँ ये जो सब बुरी बातें हो रही हैं उनका हमको सामना करना पड़ेगा। हमको अपना यूनियन एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा। और एक दूसरा मुद्दा जो मैं यहाँ पे उठाना चाहूँगी वो है भेदभाव, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। ये एक आसान मुद्दा नहीं है, इसके बारे में बातचीत भी करना आसान नहीं है। ये आप हर एक संदर्भ में पाते हैं। आप इसको जहाँ तक धर्म का सवाल है, जहाँ पे संस्कृति का सवाल है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में भेदभाव होता है। और मुझे लगता है कि ये जो भेदभाव है इसके बारे में हमें थोड़े ज़्यादा गौर से देखना चाहिए और इसको हमें ट्रेनिंग में जो हम प्रशिक्षण देते हैं उसमें भी इसको शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारे कर्मी हैं, उनको पता चले कि भेदभाव क्या है, उसे पहचान पाएं और ताकि वो उसके खिलाफ लड़ सकें। और इसी से जो हिंसा है, उत्पीड़न है, उसी को हम रोक सकते हैं, क्योंकि ये पावर बैलेंस जो है ये हमें बदलना है। बहुत धन्यवाद फिश। मुझे लगता है जो कि आपने बोला है, ये भेदभाव जो कई सारे क्षेत्रों में हम देखते हैं, वो एक चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा जब भविष्य में। और अब आयरीन से मैं निवेदन करती हूँ, अगर आपको कुछ बताना हो। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी हम एक ऐसे आपातकालीन स्थिति में हैं जिसकी वजह से हमारी सारी जो साधारण सी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब बहुत मतलब अलग तरीके से अब होने लग गई हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे अधिकार हैं वो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जो यूनियन है, हमें फ्रंट लाइन में जो फ्रंट लाइन कर्मी है उनके लिए लड़ना चाहिए। हमें जो सुरक्षित कार्यस्थल पे जो परिस्थितियां हैं उनके लिए लड़ना है। और जो अभी तक मेरे ख्याल से ये बहुत ही निराशजनक है कि सिर्फ 2 देशों ने अभी तक जो C-190 हमारी जो संधि है उसको हस्ताक्षरित किया है, उसको अपना लिया है। तो इसके लिए भी हमने लड़ना है। और जो हमारे यूनियन है उनको जो PPE हैं, सुरक्षा उपकरण जो हैं हमारे फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए, उनके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आयरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। शीला, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट। हाँ जी, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Sheila ji, we can hear you. Sheila doesn't realize that we can hear her and we are running out of time. So I want शीला जी को पता नहीं चल रहा कि हमें उनकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। लेकिन शायद हम चैट में शायद आप लोग देख सकते हैं। आप कृपया वहां पे देख लीजिए कि जो काम अलग अलग यूनियन कर रहे हैं इस हिंसा के खिलाफ, महिलाओं के हिंसा के खिलाफ और दूसरे भी मुद्दों पे क्या क्या काम चल रहा है और वो समाज में क्या काम कर रहे हैं। आप कृपया देखिए कि ये काम क्या हो रहा है, इसको साझा कीजिए, एक दूसरे के साथ, दूसरों के साथ साझा कीजिए। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने यहाँ पे आज भाग लिया। और प्लीज जो C-190 और जो हमारी संधि 159 है उनके बारे में, सॉरी 189 है, जो उनके लिए भी, उनके हस्ताक्षरण, उनके स्वीकार होने के लिए भी आप लड़ें। और हम चाहते हैं कि इसके बारे में और महिलाओं के लिए लिंग समानता और इन सब मुद्दों के लिए हमको और डाटा चाहिए और जानकारी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुवादकों को भी, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरप्रेटर्स को। और हम फिर मिलेंगे।